Hello students, we have read the essay The March of Mind written by Dr. S. Radhakrishnan. Here he is talking about value-based education. Now we will do the concluding part of the essay. Dr. Radhakrishnan says, living conditions in universities leave much to be desired. Leave much to be desired means there is something that is not very good at all. So living conditions in the universities is not very good at all. True education needs conversation and debate, exchange of opinions and thoughts with friends with whom we can speak and listen easily, sympathetically and without fear. So true education requires a conversation. कि ट्रू एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि कॉन्वर्सेशन हो, डिबेट हो, आइडियाज़ का एक्सचेंज हो फ्रेंड्स के बीच में, और उन लोगों के साथ हम अपने विचारों का आदान प्रदान करें जिनके साथ हम बिना डर के, बिना फियर के इजीली बात कर सकते हैं और जिनको हम इजीली सुन सकते हैं. बट आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दीज एडिक्वेट? बट देयर इज़ ए क्वेश्चन that whether the opportunities for these works, for debate, for conversation, for presenting our opinion is sufficient in our universities. Again, there is no adequate provision for games and other corporate activities. Apart from debate and conversation, there are other things like games and other corporate activities for which there is no adequate opportunities for our students. There is no reason why students who are physically fit should not be encouraged to join the National Cadet Corps in larger numbers. ये कोई कारण समझ नहीं आता कि क्यों वो स्टूडेंट्स जो कि फिज़िकली फिट है उनको एनकरेज नहीं किया जाता एनसीसी को ज्वाइन करने के लिए. सो हियर डॉक्टर राधाकृष्णन सेज दैट वी शुड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन एनसीसी. Membership of the corps fosters habit of discipline, teamwork and dignity of labor. And why he focuses on the membership of NCC? Because this membership creates a habit of discipline, teamwork and dignity of labor in our students. तो यहाँ डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात की है कि कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज़ हर तरह की प्रोवाइड की जाए कि उनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो बाय देयर एजुकेशन. आई रिग्रेट टू सी दैट द स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट adopted by the center and the states do not pay adequate attention to this most important of all problems, the education of the youth of the country. And here he regrets that there are many schemes adopted by the central government or by state governments, but they are not paying proper attention to the most important of all problems. And according to Dr. Radhakrishnan, the most important of all problems is the problem of education of the youth of the country. कि यूथ जो है कंट्री का उसको कैसे एजुकेट किया जाए वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और उसकी तरफ ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और ना ही स्टेट्स. और होल एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी विल सफ़र इफ़ एजुकेशन इज़ नॉट गिवन टॉप प्रायोरिटी. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधाकृष्णन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर गवर्नमेंट टू गिवन प्रायोरिटी इज़ एजुकेशन ऑफ यूथ. तो एजुकेशन जो है उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जानी चाहिए, और अगर एजुकेशन को इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई तो हमारा लोकतंत्र के साथ जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरह से फेल रहेगा. इट विल सफ़र. द फ्यूचर लीडरशिप ऑफ द कंट्री विल बी इम्पैरल्ड इफ़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ अलाउड टू डेटेरियोरेट फॉर लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट. और अगर हम पैसे की कमी की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है उसको अगर ख़तरे में डाल रहे हैं तो हम एक तरह से हमारी फ्यूचर लीडरशिप जो है देश की उसको डेंजर में डाल रहे हैं. So here we have seen that Dr. Radhakrishnan is focusing on the importance, or we can say supreme importance on the education of students.
कैरेक्टर इज डेस्टिनी, चरित्र ही भाग्य है। दिस मैक्सिम अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज टू नेशंस। और ये जो कहावत है कि चरित्र ही भाग्य है, ये कहावत इंडिविजुअल्स के ऊपर उतनी ही लागू होती है व्यक्तिगत रूप पर जैसा कि किसी राष्ट्र पे, नेशन पे लागू होती है। वी कैन नॉट बिल्ड राइटली विद रॉन्ग मटीरियल्स। अगर हम कोई अच्छी चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मटीरियल भी अच्छा चाहिए। सो मोर देन योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और टेक्निकल स्किल, what makes you valuable to society is your devotion to a great cause। और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और टेक्निकल स्किल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो कि सोसाइटी के लिए आपको वैल्यूएबल बनाती है, दैट इज़ योर डिवोशन टू ग्रेट कॉज, कि किसी महान कार्य के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। वी हैव ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज, इंटेलिजेंट मैन एंड वुमेन, and in addition we learn to work together with pride and spirit of dedicated in the sacred cause of rebuilding our country। No one can prevent us from achieving goal। अगर हमारे पास डिवोशन है, समर्पण है किसी महान कार्य को करने के लिए, तो हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कोई भी गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। हम क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, इंटेलिजेंट पर्सन्स भी हैं, और इसके साथ साथ अगर हम मिलकर काम करें एक प्राइड की भावना के साथ और डेडिकेशन के साथ अपने राष्ट्र को रीबिल्ड करने के लिए, तो हमें कोई रोक नहीं सकता हमारे गोल को अचीव करने से। और फ्यूचर डेस्टिनी एज ए नेशन डिपेंड्स ऑन आवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रादर देन अपॉन आवर मटीरियल वेल्थ। नायमात्मा बलहीने लाभ्यो। Here, Dr. Radhakrishnan has used a Sanskrit shlok from Mundak Upanishad. It means that the infinitude of the soul cannot be experienced by the weak in body and weak in soul। The goal of perfection cannot be achieved by the weak, not the weak in body but the weak in spirit। यानी अगर हमें परफेक्शन का गोल हमने रखा है, हमारा टारगेट अगर किसी परफेक्ट चीज़ को करने का है, परफेक्ट अचीवमेंट का है, तो उसके लिए हमारी बॉडी के स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ हमारी जो स्पिरिट, हमारी जो सोल है, वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ ए नेशन इज़ द स्पिरिट ऑफ इट्स पीपल। यानी जो लोग हैं उनके स्पिरिट, उनकी भावना, उनका जो आंतरिक रूप से वो मजबूत हों, स्ट्रॉन्ग हो, ये एक राष्ट्र का सबसे बड़ा एसेट है। इफ़ वी ब्रेक द स्पिरिट ऑफ ए पीपल इम्पैरल देयर फ्यूचर, इफ़ वी डेवलप द पावर ऑफ द स्पिरिट आवर फ्यूचर विल बी ब्राइट। अगर हमने उनकी इस इनर स्पिरिट को ब्रेक कर दिया तो फ्यूचर जो है कंट्री का वो खतरे में है। अगर हमने इस पावर को स्पिरिट को, इस इनर स्पिरिट को पावरफुल बना दिया, देन आवर फ्यूचर विल बी ब्राइट। सो हियर डॉक्टर राधाकृष्णन इज फोकसिंग on the inner strength, spiritual strength of people for rebuilding the nation. Thus, the essay reveals Dr. Radhakrishnan as a true patriot of the country. He is very much concerned about the right kind of education for the development of our country. He has highlighted the true aim of education in order to provide completeness and meaning to human life. Thank you.